हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेसन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको तुम ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो हमें कार्बन का मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए कि 12 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ मीथेन. Formula of methane is CH4 and it has 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. Now atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of hydrogen is 1. In formula we have 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms, so molecular mass of methane is equal to 12 plus 1 multiplied by 4. 12 is the mass of carbon and 4 are number of atoms of hydrogen and 1 is atomic mass of hydrogen. Now we will calculate it and we get 16 am units. Now we should know what is the molar mass. Molar mass is the mass expressed in grams. Now molar mass of methane is 16 gram. There is only change of unit and it is converted into molecular mass is converted into the molar mass. So molecular mass is 16 units and molar mass is 16 gram. Now we will calculate the mass of water molecule. Water molecule contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. The mass of hydrogen is 1 unit. It is 1 unit. Mass of oxygen is 16 units. Now molecular mass of water is 2 multiplied by 1 plus 16 and it is equal to 18 units. Now what is the molar mass? Molar mass is 18 gram. Okay. Now we will calculate the molar mass of carbon dioxide. Carbon dioxide contains 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Molecular mass of carbon is 12 and atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. Now molecular mass of carbon dioxide is equal to 12 multiplied by 1 and plus 16 multiplied by 2. So it is 44 units. But molar mass of carbon dioxide is equal to 44 gram. Now in this question we have learnt that molecular mass is expressed in atomic mass unit or units and molar mass is expressed in gram. When atomic mass is expressed in gram, it is the molar mass. Now we will do question number 2. Calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate. The molecular formula of sodium sulfate is Na2SO4 and it is containing 2 atoms of sodium, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen. Now atomic mass of sodium is equal to 23 and atomic mass of sulfur is equal to 32 and atomic mass of oxygen is 16. Now we will calculate the molecular mass. Molecular mass of sodium sulfate is equal to 2 into 23 plus 1 into 32 plus 16 into 4. Now molar mass, it is equal to 142. Molar mass is expressed in grams, so molar mass of sodium sulfate is equal to 142 gram. Now we will calculate the mass percentage of an element. मास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अपनी मार्कशीट में अपनी परसेंटेज निकालते हैं, हमारे मार्क्स आते हैं 400 आउट ऑफ 500, तो हम क्या करते हैं इसकी परसेंटेज निकालने के लिए
400 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे हर एलिमेंट के मास की परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड प्लस टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ वी विल कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का कितना मास है कंपाउंड में? 46 है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए 46 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इट इज इक्वल टू 32.39%। व्हाट इज द मास ऑफ सल्फर? सल्फर का मास कितना है? 32। तो परसेंटेज कैसे निकल जाएगी? 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 एंड इट इज इक्वल टू 22.53%। And what is the mass of oxygen? Mass percentage of oxygen is equal to 64 upon 142 into 100 and it is equal to 5.07. And now we will do question number 3. Question is, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% डाईऑक्सीजन बाई मास। अब हमने इसमें क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूले के लिए क्या दे रखी है? एलिमेंट्स, पहले तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आयरन है और डाईऑक्सीजन है। परसेंटेज कितनी है? आयरन की परसेंटेज है 69.9 और डाईऑक्सीजन की परसेंटेज है 30.1। Now atomic mass of iron is equal to 56 and atomic mass of oxygen is 16. अब इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मास गिवन डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। तो आयरन में 69.9 अपॉन 56 इट इज़ इक्वल टू 1.25 और डाईऑक्सीजन में 30.1 अपॉन 16 इट इज़ इक्वल टू 1.88। अब हमने क्या निकालनी है? सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो? सिंपलेस्ट रेशो के लिए जो दोनों में से कम है ना, उसको उससे दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दो। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 1 एंड 1.88 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। अब हमें होल नंबर रेशो निकालनी है। होल नंबर रेशो निकालने में, क्योंकि नीचे 1.5 है ना, तो इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर रेशो को निकालने के लिए। तो आयरन का सिंपल रेशो 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। और डाईऑक्सीजन की सिंपलेस्ट रेशो 1.5 है, तो इसका 1.5 इंटू 2 3 आ जाएगा। नाउ द एम्पिरिकल फार्मूला इज Fe2O3। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in air. ठीक है, जब 1 मोल कार्बन जो है बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो हमने सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, C plus O2 gives you CO2. This is a balanced equation. ठीक है, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन O2 के 1 मोल में 32 ग्राम है और हमें मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाईऑक्सीजन। अब हमारे पास इक्वेशन तो वही है, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लेकिन अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है आधी हो गई है, 16 ग्राम हो गई है ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 6 ग्राम कार्बन के साथ ही रिएक्शन करेगी, उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगी, ऑक्सीजन बची रहेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है, कार्बन 6 ग्राम जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और फिर
हमारा जो है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब हमारा कार्बन जो है 6 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम है। तो इसमें हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जो है इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट 16 आएगा, क्योंकि कार्बन तो बाकी 6 ग्राम बची रहेगी और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। Now 16 gram, 16 gram. तो 12 ग्राम जो है 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, कार्बन के। ठीक है, कार्बन के कितने हैं, 2 मोल हैं और 12 ग्राम है और ये 32 ग्राम है। 12 ग्राम कार्बन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देती है। अब हमारे पास 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन 16 ग्राम है, लेकिन कार्बन के 2 मोल हैं। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 16 ग्राम तो 6 ग्राम कार्बन के साथ ही रिएक्शन करेगी, बाकी तो अनरिएक्टेड कार्बन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो जो हमारा 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्सीजन जब 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगी, तब भी वो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन तो ख़त्म हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ही नहीं होएगी तो कार्बन आगे कैसे रिएक्शन करेगी। तो आंसर इज 22 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है CH3COONA। टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल। तब इसमें हमें मोलरिटी दी हुई है। मोलरिटी मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स 1000, हमारे पास मोलरिटी है 0.375, तो 1000 ml सॉल्यूशन में 0.375 मोल्स हैं सोडियम एसीटेट के। तो 500 ml में कितने मोल्स होंगे, तो हमने ये फार्मूला लगाया, तो 0.375 अपॉन 1000 इंटू 500। तो 500 मोल में जो है 500 ml में हाफ मोल हो जाएंगे। तो 0.375 को 2 से डिवाइड करके हमारा आ गया 0.1875 मोल्स। तो 500 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1875 moles. Now molar mass of sodium acetate is equal to 82.0245 given. तो मोलर मास हमें दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो हमें मास निकालना है। ठीक है, इस 500 ml में कितना मास है, मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कभी मोल्स को मास में कन्वर्ट करना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट इन 500 ml इंटू मोलर मास, and it is equal to 0.1875 mole multiplied by 82.0245 ग्राम पर मोल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.38 ग्राम। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 15.38 ग्राम इन 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।